कोई भी गेस्ट जो बड़े लेवल पे है, जैसे अभी हमारा मार्केटिंग कॉन्क्लेव आ रहा है, we have invited the marketing head of Acer to our college, to head the conclave. तो कोई ऐसे ही तो नहीं आएगा सर, कॉलेज का नाम होना चाहिए, वैसे लोग होने चाहिए कॉलेज, तभी तो लोग आएंगे. सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट ब्रिंग्स देम टू अस, राइट, ताकि वो आए, हमें गाइड कर सके और हम उनकी हेल्प ले सकें. सो अगर हमारे फैकल्टी ही उतना एफिशिएंट नहीं होता या अगर हमारा टीम ही उतना एफिशिएंट नहीं होता तो वो क्यों आता है हमारे कॉलेज. हाँ, कुछ ऐड करना है आपको? As she told that every Friday we have mentoring session. So my mentor is Nitin Garg, director of this college. Great. So he is basically आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है. yes. So basically he is having good background and also though he is so director like high post and all, he's so down to earth and he explains everybody who is lacking behind in what situation and he really helps a lot. It doesn't feel like you're talking to a director, but you'll feel like you're talking to a professor or a normal, friendly human being. And also the way every Friday we just go to them and we talk to them, communicate with them just to know that where and what we should do. So we just communicate with them regarding that, sir, what is the next step to further to reach our goal. So recently, yesterday also we had this communication with UG students where he got the background from Bocconi, Italy, Milan. And also California University. So there were 6 members who were representatives of the countries. Yeah. So they came and they spoke about to students regarding that the people or the students who are opting to study abroad. So it was a great help and it was a great exposure and that was done by Nitin Garg sir because he's having a good background for that. Okay, ठीक है. आप लोग अलग अलग स्टेट से हो, राइट. मुझे ये समझाओ कि बैंगलोर को लेके क्रिएट किया गया है कि अगर आप बैंगलोर जाते हो तो लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एक्सपोजर बहुत अच्छा है. बट मुझे जो लगता है एक्सपोजर आपके लिए तभी है जब आप बाहर निकलो, आउटरीच करो लोगों को. तो एक्चुअल में क्या बैंगलोर आने का बेनिफिट आप लोगों को दिख रहा है, और अगर दिख रहा है तो किस तरीके से दिख रहा है, और क्या होता है अगर आप दूसरे सिटी में पढ़ाई कर रहे हो? एक्सपोजर मिल रहा है आपको यहाँ बैंगलोर का जो सोच के आए थे? यस. हाँ जी. Like we have industries visit as well. We went to TVS का showroom industry. Britannia also, Sri also we went. तो वहाँ पे जाके we just not only visit there, but we have to make a report also over that. तो हम लोग कुछ सीखेंगे तभी तो we will be able to make a report. So we are getting to learn a lot of thing out of there also. Not just for a pleasure or something we are going and enjoying the thing, but also we are getting to learn a lot of thing out of there. तो वो भी हमारा हो जाता है. तो that is where we go. And there are few faculties also, visiting faculties होते हैं. They used to come and teach us like for 1 hour and 45 minutes. तो उनसे भी हमारा काफ़ी कुछ इंट्रैक्शंस होता है. देयर फ्रॉम देम ऑल्सो वी गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग, क्योंकि वो दूसरे बी स्कूल्स में भी जाके पढ़ाते हैं. तो काफ़ी सारे एक्सपोजर उस तरीके से भी हो जाते हैं हमारे. इंटर्नशिप का किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम ISME बैंगलोर ने डेवलप किया हुआ है, और वैल्यू ड्रिवन इंटर्नशिप किस तरीके से यहाँ पे है? एक तो पहले ये बताओ कि क्या आउटकम ड्रिवन इंटर्नशिप है या केवल ऐसा ही है कि नाम के लिए ही इंटर्नशिप कर रहे हो? आप बताओ. वी हैव अ करियर अपॉर्चुनिटी सेल अपने कॉलेज में, जिसको COC शॉर्ट में बोलते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटर्नशिप्स ऑफ स्टूडेंट्स. अगर स्टूडेंट खुद से ढूंढ लेता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड. इफ नॉट, we have a dedicated team for it. Literally every student here in the college, we have 189-190 students here. Everybody will be getting an internship. हमारे सीनियर बैच में सबको मिला था. जनरली क्या होता है, पेड या अनपेड? सर दोनों तरह के होते हैं. Actually, one of my friend from my class only, Shrestha, she opted HR and she got 30,000 ka paid internship. He was also there in that. It's a Saudi Arabian company. So 3 of us had given the interview. We had got it through COC. They had only one position to hire, so she got selected. Okay. At a stipend of 30,000. So our internship curriculum is of 2 months, and it's not like you can just submit a fake certificate अपने अंकल चाचा से बनवा के सबमिट कर दे. वो नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि after once your internship gets completed, there will be a complete 1 week assessment of your internship report and project. You have to make an internship project report of each day कि आपने ये दिन क्या करा, इस दिन क्या किया. And after the end of your internship, after 1 week of analysis by the teachers, you'll sit in an interview by the faculty, maybe internal or external, we are yet to know. और वो आपको जज करेंगे कि आपने सही में कुछ काम किया भी है कि बस झूठ बोल रहे हैं. एंड सिंस दे आर रियली फ्रॉम द इंडस्ट्री आंसर प्रोफेसर्स, तो ऑब्वियसली उनको पता चल जाएगा झूठ बोले सच बोलेंगे. तो फिर वो बहुत स्ट्रिक्ट करिकुलम है, आप ऐसे झूठ बोल के निकल नहीं सकते. तो मतलब कुल मिला के बात ये कि आउटकम ड्रिवन इंटर्नशिप जो है वो यहाँ पे मिल रही है. ठीक है, 2 महीने का ड्यूरेशन आपने बताया. ठीक, जो प्लेसमेंट सेल हेड कर रहे हैं उनके बारे में कोई आइडिया है? क्या नाम है उनका क्या बैकग्राउंड है? Vinod sir, Soumya ma'am, and Nitushri ma'am, and Mini ma'am. So these are the 4 members who play the major role, and so as Soumya ma'am is the head for committee. बैकग्राउंड क्या है उनका? कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस? हाँ, she has a corporate experience, and also she is the leader of all these among the 4 members. And basically ये लोग ऐसे चेक करते हैं, they make everybody think like कि हर बच्चा यूनिक रहे.
and they shouldn't be matching ki chalo abhi recently we did that FAQs which is related that you should give your opinions like what you will be after 5 years and tell me about yourself. There were 41 questions and we have to write that. So our principal will gonna check all those questions regarding that and will be placed according to that, like this student is according choosing his domain as BA or HR. साइकोलॉजिकल असेसमेंट. Yeah, basically. ठीक है. Like सबको पता चल जाए कि कौन कैसा बच्चा है. Instead of directly interviewing, as student can do for classes, go for classes, and also faculty यहाँ पे वो check करते रहेंगे कि बच्चा किस में ज़्यादा interested है. So and faculty ऐसा है कि परसों हम लोगों को resumes बनाना था. So we have to do that LinkedIn profile and everything. We are updated on every social media. Faculty and the member of COC they'll be like check करेंगे कि बच्चे का कहाँ पे miss out हो रहा है. Like for example skills. For example your profile. वेर यूर लैकिंग, ताकि उन लोगों को ट्रेनिंग दे और उन लोगों को समझ आए कि यू शुड बी इन एडवांस. एंड ऑल्सो इट्स अबाउट रेज्यूमे सिर्फ ऐसे बना के छोड़ने का नहीं. आई एम बीइंग द मेंबर ऑफ अ प्लेसमेंट कमिटी, आई हैव चेंज्ड 4 to 5 times ऑफ माई रेज्यूमे जस्ट बिकॉज इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, जस्ट बिकॉज लाइनिंग सही नहीं था, अलाइनमेंट सही नहीं था. दे एक्चुअली मेक एवरीथिंग इन अ प्रॉपर एंड इन अ डिसिप्लिन वे. ATS friendly resume. या Right. सो बहुत अच्छा फैकल्टी है एंड दे एक्चुअली हेल्प एवरी स्टूडेंट इन एवरी बैच. कि कोई बच्चे का अगर एक्सेंट प्रॉब्लम है या देर इज सम प्रॉब्लम दैट दे आर not communicating just because they are shy or they are afraid. So there are 10 members of the placement committee and I'm one of them. So 10 बच्चों 193 students को they just take 20 students each member and they just communicate so that they'll just talk to them and communicate to the faculty. So there is a bridge between the faculty and the students, the placement committee. So they play a major role in that. आप लोगों ने PGDM क्यों चुना? Sir, I chose PGDM just because PGDM gives you more of a practical knowledge, right? And ISM में क्यों PGDM choose किया, अगर आप ये पूछेगा. So while doing my research, I came across some information which I liked very much. This is इस college में बहुत सारे clubs हैं. Apart from the academic, वो तो चल ही रहा है. There are clubs here, like we have literature and communications club, we have a CSR club, we have a cultural club, and we have an entrepreneurship club as well. And when we shift to the second year, लेने के बाद, then we have HR club, analytics club. जितने स्पेशल उनके हिसाब से क्लब्स भी हैं. And also अच्छा, we एक have international trip as well. राइट. International trip. Yeah. So एक बार इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में डिटेल में बता दो, क्योंकि देखो इंटरनेशनल ट्रिप जो है ना वो बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर करते हैं, बट वो वही है कि केवल घूमने वाला ट्रिप होता है, उसका कोई मतलब नहीं है और ब्रोशर में दिखाने के लिए. तो क्या वैल्यू निकलता है जब एक इंटरनेशनल ट्रिप आपके यहाँ पे ऑफर होता है और कैसे डिफरेंट है वो बाकी कॉलेज? So sir, we haven't been to that trip right now because वो second year में होगा. But recently in January itself, अभी इस month के starting में हमारे seniors गए थे. So it is an कहाँ गए हुए थे? Singapore. It was a 10-day trip. ठीक है. And उस 10 days में आपको पूरे 10 दिन you have to attend the classes regularly. Okay. You cannot skip, otherwise you'll miss a certificate. एक दिन skip हुआ आपको certificate नहीं मिलेगा. ठीक है. And you're paying an amount. You're going there. करना होता है? Sir, 75,000 के आसपास, which includes your travel and stay. ठीक है, रीजनेबल. रीजनेबल है सर. आप खुद भी जाइएगा तो उतना आपका लगना ही ट्रैवल स्टे में, उससे ज़्यादा लगे इनफैक्ट. एंड जो सीनियर से बात है, स्टे भी काफ़ी अच्छा था. जो जिस कॉलेज से MDIS उसके हॉस्टल में ही स्टे था. एंड द करिकुलम वॉज वेरी गुड. करिकुलम के बाद यू कैन टेक अ टूर ऑफ द सिटी. वो आपके ऊपर आपको कैसे करना है, बट there's a time limit. You have to get back to the hostel जो भी टाइम लिमिट दिया हुआ होगा. If you miss again, you'll have to face consequences. ठीक है. So ऐसा नहीं है कि हमारा कॉलेज सिर्फ ब्रोशर में लिखने के लिए डाल दे रहा है. Sightseeing वाला नहीं है ये. नहीं सर, साइट सीइंग वो आप पे मन पे है ना. करिकुलम चल रहा है. Post curriculum, primary objective is curriculum. So, but Post then that certificate is very much Very important, important, because when you are doing your resume, when you are going for job opportunities or interviews, that actually has a lot of important. Instead of that, there will be so many things like, for example, research papers. A student make you unique just because अभी थोड़े बच्चे हैं जो बोलेंगे कि she is very much student, she is having 97% and she might be having 85%, but she will be having much more value than her or him, just because she is having so many research papers which has been published. So that is the most important thing. And also Singapore trip का the certificate which you will be doing, it will add value to your resume. ठीक है. जैसे स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट अगर करना है किसी स्टूडेंट को, तो उसमें कॉलेज किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराता है आप लोगों को? कॉलेज जो सपोर्ट देता है, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट विच स्पेशलाइजेशन यू हैव टू चूज. फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक, कि आपको पहले से माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आई वांट टू डू दिस. तो इसके लिए आपको यू हैव टू प्रिपेयर अ ग्राफ कि मेरे को ये करना है, देन ओनली यू कैन अचीव दैट. तो उसके लिए यू हैव टू बी वेरी मच प्रीटी क्लियर अबाउट योर स्पेशलाइजेशन कि अभी मुझे HR लेना है. फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए. तो आई हैव टू अप्रोच फैकल्टी जो HR के प्रोफेसर होंगे, तो मेरे को उनसे बात करनी है. इफ आई वांट टू नो मोर अबाउट इट, तो मैं उनसे बात करूंगी. तो ऑब्वियसली वी गेट एन आइडिया. So the main reason for opting your specialization or domain is like first year सबका subjects इसलिए लगाया गया
जस्ट बिकॉज यू विल बी हैविंग अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट कि तुम कौन से सब्जेक्ट में तुम प्रिफर करते हो, तुम पसंद करते हो. For example, there are so many force domains like HR, marketing, finance, and business analytics. So he is good at HR just because he has a knowledge about HR. So first year is a basic knowledge about every student कि कौन किस में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है और किस बच्चे को कौन सी सब्जेक्ट पसंद आ रही है. अब फॉर एग्जाम्पल डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स, सो आई एम वेरी मच लाइकली अबाउट कि भाई मुझे नंबर्स पसंद है एंड आई लाइक दोज फार्मूलाज एंड आवर, सो दैट अभी मेरे को नॉलेज आएगा कि चलो आई डोंट वांट HR काइंड ऑफ थिंग, आई जस्ट वांट टू बी डूइंग दैट बैठने वाला विच विल बी हैविंग मच मोर ट्रेंड इन फ्यूचर एंड हैविंग ग्रोथ. सो बेसिकली फर्स्ट ईयर में तुम लोगों को ये समझने के लिए रखा है सारे स्पेशलाइजेशन नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ताकि तुम लोगों को नॉलेज एंड आइडिया है कि तुम कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो. पहले अवेयरनेस तो आ जाए फिर डिसीजन. पर ऐसा होता है कि लोग मन बना के आते हैं कि फाइनेंस लेना ही लेना, क्योंकि फ्रेंड फाइनेंस ले रहे तो मैं भी फाइनेंस ले अभी लूंगा. फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद से आई केम ओनली फॉर BA एंड आई हैव बीन चूजिंग BA जस्ट बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन दैट. अभी थोड़े बच्चे जो एक्चुअली BA लेना चाहते थे बट दे हैव ऑप्टेड फॉर फाइनेंस राइट नाउ जस्ट बिकॉज फर्स्ट ईयर में एग्जैक्टली. तो स्टूडेंट्स जो फैकल्टी के टीचिंग्स के या बेसिकली दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच इज मच मोर इम्पॉर्टेंट इन फ्यूचर, वो सोचने के बाद स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड डिफरेंट डोमेन. इन्फॉर्म डिसीजन आप तभी ले सकते हो जब आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, राइट? ठीक है, और रैप करते हैं. आप लोग अपने यहाँ का जो कॉलेज लाइफ है उसके बारे में बता दीजिए, फेस्ट वगैरह, जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा कॉलेज लाइफ भी होना इंपॉर्टेंट है. तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए और क्या कॉलेज करता है, इस पे बताइए. स्पोर्ट्स की क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, सब कुछ जो भी आप कवर कर सकते सर जैसे आपने कहा सिर्फ एकेडमिक्स ही रहेगा तो स्ट्रेस बहुत हो जाएगा सर, राइट? अभी हमारे मार्च में कॉलेज का हमारा जो फ्लैगशिप इवेंट है PGDM का बिजी बज, वो आने वाला बिजनेस मैनेजमेंट फेस्ट, अभी उसी पे हम लोग सब काम कर रहे हैं. 4 दिन बाद हमारा मार्केटिंग कॉन्क्लेव है लाइक आई मेंशन अर्लियर, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आएंगे, लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं. वी ऑल्सो हैव अ स्पोर्ट्स एरिना, जस्ट बिल्डिंग के बगल में स्पोर्ट्स एरिना है वेर इन यू कैन प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, जो चाहे आप खेल सकते हैं. कॉलेज गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही है, यहाँ पर इवेंट्स भी होते हैं, काफ़ी इवेंट्स होते हैं बिजी बज जैसे मैंने लिया, एंड वी इवन सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर. बेसिकली अभी सेलिब्रेटेड ओनम, वी सेलिब्रेट दिवाली, ठीक है, गणेश चतुर्थी. टाइसन is कि जो भी फेस्टिवल करना होता है और एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टूडेंट्स इटसेल्फ. हाँ, तो टीचर्स वर देयर बिहाइंड की सपोर्ट के लिए, बट एवरीथिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय अस. वी हैव एन एम्फीथिएटर आल्सो जहाँ पे हम लोग वी यूज्ड टू डू आवर दिस इवेंट्स एंड ऑल. वी हैव 4 क्लब्स, 4 to 5 क्लब्स, दैट इज CSR, जिसमें मैं भी हूँ CSR क्लब में, वेयर वी हैव टू डू जैसे कॉर्पोरेट में भी होता है, हमारे कॉलेज में भी है. एंटरप्रेन्योरशिप क्लब आल्सो वी हैव, और एक है लिटरेचर क्लब, कल्चरल क्लब आल्सो वी हैव. एवरी फ्राइडे वी आर हैविंग दैट एंड वी हैव टू अरेंज डिफरेंट इवेंट्स इन दैट. हर वीक में कुछ इवेंट्स वी हैव टू डू. all these clubs are headed by students. President, vice president, सारे students हैं. Like informed earlier in the video कि I am the president of the CSR club and we have done many things. ना हो. अगर कोई नया स्टूडेंट आ रहा है, कुछ हैक्स कह सकते हो, टिप्स कह सकते हो, जिससे उसकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो पाए. Staying in hostel for both boys and girls, the time is 9 o'clock. आजकल के बच्चे they'll be saying कि कुछ ना कुछ बहाने मार के, and they'll be having some other drags and all. Time. It teaches you being on time. 1 minute, if you are late by 1 minute, the door shuts on our mouth. सर आपकी अटेंडेंस चली जाती है जब आप क्लास में नहीं आते. 80% ऑफ अटेंडेंस अगर Is उससे mandatory. और ऐसे होता है हमारे बैच क्या होगा अगर नहीं है तो मेरा? नो they won't allow for exam. अपने बॉस को नहीं बोल सकते कि सर मैं नहीं था, मुझे नहीं पता था प्रेजेंटेशन करना. यू कैन नॉट गिव दोज एक्सक्यूजेस. तो सिमिलरली यहाँ भी है ना, आप यू आर बीन गिवन 20% फॉर ऑल योर सिक लीव्स. एंड कॉलेज डज कंसिडर, अगर कुछ बहुत मेजर आपको बीमारी या कुछ ऐसा होता है तो कॉलेज विल कंसिडर. ऑब्वियसली हम लोग के केस में भी करा है. एंड अ सजेशन विच यू आज एनीबॉडी हु कम्स हियर, ग्रैब ऑल द अपॉर्चुनिटीज यू get your way. That is also you will be learning so many exposures, and also you will learn a lot. You will be disciplined, you will be learning a lot, you will be developing your skills, you will be going to new places. As we have went to NHRD, like I'm part of NHRD, ताकि आप HR से बात कर सको, क्वेश्चन कर सको. So you will be having good exposure and you will be having a kind of support, not only from faculty. If you make friends here, they'll support. ठीक है, आई होप बहुत लेंथ में हमने चीज़ों को डिस्कस किया, बट स्टिल अगर लगता है कि कोई चीज़ और रह गई है जो हमने डिस्कशन में मिस आउट कर दिया, तो आप बिल्कुल रीच आउट कर सकते हो. हमारी काउंसलिंग टीम पूरी कोशिश करेगी आपके सवालों के जवाब देने की. थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ.